Welcome all. Today we will have a discussion on mediation and its process. This whole presentation is divided into 7 parts, starting with learning objectives, followed by learning outcomes. What is mediation? What are the various types of mediation? The process involved in a mediation process, benefits of mediation, and finally, conclusion. Starting with the first, that is learning objectives. The main objective of this presentation is to equip the audience with the knowledge and the overall process of mediation. How mediation has to be done, what is mediation, and when it has to be done will all be discussed in this presentation. Second is to evaluate. Here, the audience will be able to identify the information which has to be gathered in various stages of mediation. So there are 5 stages of mediation. So we need to find out that in which stage, what information has to be gathered. Third is to make the audience analyze the role of mediator. Mediator is the third party, the facilitator, who tries to resolve the dispute between the disputants. And so how his role has to be will be discussed in this presentation. Fourthly is to understand the possibility of having impasse, because no mediation can end without an impasse, that is a deadlock. तो जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप mediation कर रहे हैं लेकिन solution नहीं मिल रहा है, so that is called impasse, that is called deadlock. So how to deal with that impasse, कैसे वहां से बाहर निकलना है. Finally, the audience will be able to conduct a mediation and thereby draft a settlement agreement. तो ये सारा कुछ सीखने के बाद our main emphasis is that the audience will be able to conduct a mediation. Now, when we talk about learning outcomes, at the end of the presentation, the learner would be able to understand the basic concept of mediation, what it is and how it is. Second is attitude. We will try, the learner will be able to find out the amicable solution for the parties through facilitation. Third is skill-based, that is, the audience will be able to identify the problem and conduct brainstorming. Now, brainstorming is very important and a crucial part of mediation, where you need to engage the parties to find out the solutions. Because mediation में क्या होता है, solution parties खुद देती हैं. So therefore, this brainstorming becomes a crucial part of mediation. And fourthly, after this presentation, the learners, the audience will be able to build a rapport with the parties and respect their decision. So now starting, first, as I told you in the earlier lecture also, we are discussing alternative dispute resolution. And we have seen that alternative dispute resolution have many components or have many forms of dispute resolution. जिसमें negotiation, mediation, conciliation, arbitration, लोक अदालत, judicial settlement आता है. And now if you see, except negotiation, because negotiation क्या होता है, parties driven होता है. Court आपको negotiation करने के लिए refer नहीं करता है. But in other cases, जैसे mediation है या कुछ conciliation है, उसमें अगर आपको court को लगता है कि there is a possibility to have mediation, arbitration or whatever it is, तो कोर्ट आपको रेफर कर देता है उस मीडिएशन सेंटर में या आर्बिट्रेशन सेंटर में. सो नेगोशिएशन is not mentioned in section 89. Section 89 of CPC talks about the reference of cases from the court for alternative dispute resolution. तो वो cases जहाँ पे possibility है mediation करने की, conciliation करने की, arbitration करने की, उन cases को court refer कर सकता है under section 89 of CPC. So in mediation, in negotiation, there are only 2 parties involved. Mediation में 3 parties होती हैं, जिसमें एक party होता है, third party को हम बोलते हैं mediator. So अभी हम वही बात कर रहे हैं कि mediator कौन होता है, क्या role होता है उसका और mediation कैसे करता है. Third is conciliation. Conciliation में जो mediation का जो role होता है, mediator का जो role होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. In mediation, the only role of mediator is to facilitate and to encourage the parties to have an amicable solution.
whereas in case of conciliation, mediator himself or herself provides for some solution. तो मीडिएशन में जो मीडिएटर है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन कंसिलिएशन में जो कंसिलिएटर है वो सॉल्यूशन दे सकता है। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होता है। नाउ दिस आर्बिट्रेटर इज आल्सो थर्ड पार्टी व्हिच इज हुज डिसीजन इज नॉट बेस्ड ऑन द से ऑफ द पार्टी। जो पार्टीज के सुनना चाहेगा तो सुनेगा, अदरवाइज ही कैन गिव हिज ओन decision, but that has to be based on principles of natural justice. Then we have लोक अदालत। आपने देखा होगा काफी लोक अदालत होती हैं कोर्ट्स में, ज्यादातर ये संडे को होती हैं या छुट्टी के दिन होती हैं। Where there is a presiding officer, एक presiding officer होता है जो फिर से एक थर्ड पार्टी है जो दो पार्टीज के बीच के मुद्दे को सॉल्व करता है। एंड फाइनली वी हैव जुडिशियल सेटलमेंट। यहाँ पे एक जज जो आपके केस का जज नहीं है लेकिन कोई और जज है, वो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फोरम्स अंडर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिएशन। तो मीडिएशन क्या होता है? Now mediation, this word has been derived from the Latin word mediare, that means to be in the middle. तो अगर दो पार्टीज हैं, उन दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है, that is called the mediator, and this whole process of dispute resolution is called mediation. Now this is facilitated negotiation. अब negotiation में क्या होता है? एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, दोनों आपस में बात करते हैं। Now mediation का रोल क्या होता है कि अगर पार्टीज खुद से बात नहीं कर पा रही, खुद से डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त जो मीडिएटर है वो उन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा। इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। दोनों पार्टीज मीडिएशन में आने के लिए वॉलंटरली डिसाइड करती हैं कि वो मीडिएशन कराएं। कोई उन पे प्रेशर नहीं होता है। इट इज ओनली देयर ओन डिस्क्रिशन, देयर ओन विल दैट दे आर देयर फॉर मीडिएशन। इट इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु इज कॉल्ड द मीडिएटर। And if you see the mediator's role, it is more facilitative. That means he manages the interaction. He encourages and promotes communication between the parties, but never gives them any hint or any solution pertaining to their problem. कोई भी आप solution नहीं देते हैं when you're acting as a mediator. And it is less evaluative. Therefore, it is called less evaluative because you are not evaluating their case. Now, this mediation is done through the help of effective and specialized communication and negotiation techniques. हमने last lecture में पढ़ा था there are many negotiation techniques like salami, collaborative style. तो इन सारों को use करके जो हमारा mediator है, he tries or she tries to find out an amicable solution. It is a private process. तो जैसे आप कोर्ट में होता है कि जज होते हैं, पार्टीज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, ऑडियंस होता है, लेकिन यहाँ पे जो दो पार्टीज का मुद्दा है वही दो पार्टीज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने मीडिएटर के साथ करती हैं, और उसके अलावा कोई भी पार्टीज या कोई भी इंसान आपके मीडिएशन में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। फाइनली इट इज अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। जो भी बात आपके मीडिएशन में होती है, मीडिएशन सेशन में जो भी आपकी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करी जा सकती। So once the mediation is over, the whole confidential information which was brought into notice of the mediator has to be destroyed. तो अगर कोई भी चीज mediator ने लिखी है during the process of mediation, तो उसको destroy किया जाता है, and therefore it is confidential in nature. Now, if you talk about mediation, there are two types of mediation. The first one being the court-referred mediation. जैसे आपको ने बताया था, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी बोलता है अगर कोई कोर्ट के पास कोई केस आता है, फॉर एग्जांपल केस आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट का। नाउ कोर्ट फील्स कि अगर उस कंज्यूमर डिस्प्यूट वाले केस को कोर्ट ट्राई करेगा, अगर वो कोर्ट उस मैटर को देखेगा तो काफी टाइम बर्बाद होगा, पार्टीज का भी कोर्ट का भी। तो कोर्ट को अगर लगता है कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मीडिएशन हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगा, अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी कोर्ट उस मैटर को मीडिएशन सेल में या सेंटर में रेफर कर दिया जाएगा। और मीडिएशन सेंटर क्या होते हैं? नाउ देयर आर वेरियस कोर्ट्स व्हिच हैव मीडिएशन सेंटर्स, जहां पे मीडिएशन किया जाता है। फैमिली कोर्ट्स में तो एक प्रॉपर मीडिएशन सेल होता है। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिसके ऊपर मीडिएशन किया जा सकता है, मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसे हम रेफर करवा देते हैं कोर्ट से टू अ मीडिएशन सेल,
where the whole exercise of mediation is done. This is called court-referred mediation. The second type of mediation is private mediation. अब जरूरी नहीं है कि आपका एक मुद्दा हुआ है, एक मसला हुआ है और आप कोर्ट चले जाएं. So when the dispute is trivial in nature, जब बहुत छोटा सा dispute है, तो आप डायरेक्टली एक मीडिएशन सेल को अप्रोच कर सकते हैं और वहां पे आपका जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है उसे बोलते हैं प्राइवेट मीडिएशन, जो निजी है, आप लोगों का पर्सनल मीडिएशन हो रहा है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मीडिएशन प्रोसेस, अगर हम पूरा प्रोसेस देखें कैसे मीडिएशन किया जाता है, नाउ देयर आर इन टोटल 5 स्टेजेस. नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. काफी जगह आप देखेंगे 5-6 स्टेजेस भी लिखा जाता है, 8 भी लिखा जाता है, 4 भी लिखा जाता है, बट दैट इज on the ease of the parties, वो कैसे उसको देखती हैं. But we will follow the standard one, which says that there are 5 stages of mediation. पहला होता है introduction. अब introduction क्या होता है? Now in introduction, there are 3 parties, as you know. There is one party 1, this party 2, and there is a third party who is called the mediator. जरूरी नहीं है कि पार्टी 1 में सिर्फ पार्टी 1 आए, साथ में उनके एक लॉयर भी आ सकते हैं. पार्टी 2 को भी कोई अकम्पनी कर सकते हैं लॉयर, और मीडिएटर भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं. देयर इज an ऑप्शन ऑफ को-मीडिएटर. तो अब जब इफ यू सी these 3 areas, these 3 people, तो हमें देखेंगे there is one is mediator, the others are disputants. तो स्टार्ट करने से पहले प्रोसेस को there is an opening statement by the mediator. Now what is the use of this opening statement? वहां पे वो क्या करता है, वो पूरे मीडिएशन प्रोसेस के बारे में मीडिएटर पार्टीज को बताता है, regarding the voluntariness, regarding confidentiality, regarding the process, how it has to be done, and any ground rule if there is any ground rule, तो उसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी. So this is the role of mediator. एक बार मीडिएटर ने पूरे मीडिएशन प्रोसेस के बारे में बता दिया है, तो फिर पार्टीज भी अपने अपने केस के बारे में बताती हैं. दिस इज कॉल्ड स्टेज 1, दैट इज इंट्रोडक्शन. फिर स्टेज 2 में क्या होता है, देयर इज जॉइंट सेशन. दोनों पार्टीज मीडिएटर के साथ बैठ के अपने मुद्दों को डिस्कस करती हैं. नाउ देन स्टेज 3, दैट इज कॉल्ड कॉकस और सेपरेट सेशन और इंडिविजुअल सेशन. अब यहाँ पे कभी कभी आप देखते हैं कि एक पार्टी नहीं चाहती है कि वो दूसरी पार्टी के सामने कोई बातें करे, कोई बात ऐसी बताए जो उसको लगता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है या वो अनकंफर्टेबल है इस बात को करने के लिए. तो मीडिएटर क्या करेगा, मीडिएटर पार्टी को बोलेगा कि हम एक सेपरेट सेशन लेंगे. तो अगर वो एक पार्टी नंबर 1 से बात कर रहा है, तो पार्टी 2 को बोलेगा कि आप दूसरे रूम में वेट करिए, जब आपको बुलाया जाएगा फिर हम आपसे बात करेंगे और पार्टी 1 को बाहर भेजेंगे. तो दिस इज कॉल्ड सेपरेट सेशन. एक बार ज्वाइंट सेशन हो गया, फिर आपने सेपरेट सेशन कर दिया. अगर आपको लगता है कि आपका जो डिस्प्यूट है उसको समझने के लिए आपको और टाइम चाहिए, एंड यू नीड टू हैव मल्टीपल जॉइंट सेशंस एंड प्राइवेट सेशंस, तो उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ जितने जॉइंट सेशंस और प्राइवेट सेशन करना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री हैं. एंड फाइनली जब आपके काफी मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं, जॉइंट सेशंस एंड प्राइवेट सेशंस, उसके बाद आप फाइनली स्टेज में पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट. अब देयर मे बी, बिकॉज एज यू नो मीडिएशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. हमने पढ़ा था कि भाई पार्टीज वॉलंटरीली आती हैं, तो दैट मीन्स पार्टीज वॉलंटरीली जा भी सकती हैं. सो पार्टीज आर नॉट विलिंग टू मीडिएट एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, एनी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, तो क्या कर सकती हैं, अपने मीडिएशन को वहीं पे खत्म कर सकती हैं. देन देयर विल बी नो सेटलमेंट. अब आप क्या बोलेंगे, इफ इट इज अ कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, आप सीधे बोलेंगे भाई कोई सेटलमेंट नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर. अब क्लोजर में क्या होता है, या तो सेटलमेंट होगा या नहीं होगा. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. Now moving to the first stage, that is introduction, जहां मैंने आपको बताया था कि मीडिएटर अपने बारे में बताता है, पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है, ग्राउंड रूल्स के बारे में बताता है, और बताता है कि क्या क्या स्टेजेस होंगी मीडिएशन में. So this is the opening statement of the mediator where he sets the tone for mediation. This is done to establish neutrality. The mediator is bound to describe the role of mediator, that it is facilitative in nature, it is not evaluative. You need to address the confidentiality. एक ऐसा environment आपको बनाना पड़ेगा वहां पे to control the process. Okay, one more thing. When we talk about the role of mediator, his only or the foremost role is to have the control over the process. Process का control करना मतलब communication पे control करना, not the outcome. Outcome पे mediator का कोई role नहीं होता है.
पार्टीज खुद से डिसाइड करती हैं कि वो किन टर्म्स में सेटलमेंट के लिए अग्री होंगी. So the terms of settlement has nothing to do with the mediator. Mediator is only there to facilitate the mediation process, to control the process. So as a mediator, you control the process, but not the outcome. So in this opening statement or the introduction, you have to set a momentum towards an agreement. You need to tell the ground rules. आप बताएंगे कि भाई एक जब बात कर रहा है तो दूसरा पार्टी बात नहीं करेगा. आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करने हैं. आपको एक दूसरे को interrupt nahi karna hai. So these are the ground rules. So you need to ensure that the ground rules are well known to both the parties. So once you are done with this exercise, आप ये भी देखते हैं कि क्या दोनों parties इस पूरे mediation process को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं. Then you start with the mediation. Now coming to joint session, उसके बाद क्या होगा, parties भी अपने अपने introduction को देंगी, अपना अपना opening statement देंगी. उसके बाद हम करेंगे joint session. जॉइंट सेशन में क्या होगा, दोनों पार्टीज मीडिएटर के पास बैठेंगी. दे विल डिस्कस अबाउट देयर फैक्चुअल बैकग्राउंड. तो यहाँ पे हर एक पार्टी को एक मौका दिया जाता है अपने केस को बताने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी. सो द अदर पार्टी इज आल्सो अवेयर कि क्या बातें हो रही हैं. नाउ हियर द मेन गोल इज टू नो अबाउट द पार्टीज क्लेम, डिफेंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजीशंस. यहाँ पे आप देखते हैं पूरे केस में क्या मुद्दा है, क्या उनकी पोजीशंस हैं, उनके कोई इंटरेस्ट हैं, क्या उनके कोई नीड्स हैं, क्या कोई डिजायर है, सबके बारे में आप यहाँ पता करते हैं. एंड योर रोल एज अ मीडिएटर इज टू हैव एन इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज. अब इंटरेक्शन इनिशियली स्टेज में जो पार्टीज हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगी और उसके थ्रू वो दूसरे पार्टीज को समझ पाएंगी. So there has to be no direct interaction between the parties, but interaction through mediator. So now the role of mediator is also to maintain the environment that is conducive to constructive negotiations. As I told you, mediation कुछ नहीं है, एक facilitated negotiation है between the parties. Parties क्योंकि खुद से negotiate नहीं कर पाई हैं, therefore the role of mediator is required. So इसीलिए आपको सिर्फ उस negotiation को facilitate करना है. एक बार आप, और पूरे वक्त आपको establish करनी है neutrality. आपको unbiased होके mediation कराना है. अगर एक पार्टी को लगता है कि आप बायस्ड हैं तो मीडिएशन आपका फेल हो जाएगा. अभी कैसे करेंगे स्टेज 2 को? सो यू विल स्टार्ट वन पार्टी टू बिगिन. पहले अपनी पार्टी बताएगी अपने बारे में, अपने केस के बारे में, वो अपनी ब्रीफ समरी देगी. आपको ध्यान से सुनना है. यू कैन ऑल्सो आस्क देम दैट इफ यू आर विलिंग टू टेक नोट्स, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या मैं इसके लिए नोट्स ले सकता हूँ. एंड यू विल ऑल्सो एंश्योर, आप उनको बताएंगे दैट आफ्टर दिस होल exercise of mediation is done, these notes will be destroyed. These will be shredded because as we say that mediation is a confidential process. Those confidentiality को आपको पूरे process में maintain रखना है. Whether it is joint session, whether it is caucus, whether it is opening statement, हर जगह जो आपका neutrality है, आपकी confidentiality है, voluntariness है, ये सारा का सारा maintained होना चाहिए. अब यहाँ पे जब कोई जॉइंट सेशन हो रहा है तो यू नीड टू आल्सो पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज. हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, whether it's verbal, non-verbal communication, body language, gestures, everything. So everything has to be closely observed during the joint session. एक बार एक पार्टी के साथ आपने ये वाला एक्सरसाइज कर लिया, अब आप दूसरी पार्टी के साथ एक्सरसाइज करेंगे. उनसे पूछेंगे अपना केस बताइए, अपनी समरी बताइए केस की, आप उनके नोट्स लेंगे. उसके बाद आप दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉकस. सो इफ यू फील कि एक पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है या अनकंफर्टेबल है दूसरी पार्टी के सामने कुछ बातें करने के लिए, सो यू कैन ब्रेक फॉर कॉकस और सेपरेट सेशन और इंडिविजुअल सेशन और प्राइवेट सेशन. तो आप क्या करते हैं, एक पार्टी को बाहर भेजते हैं, दूसरे रूम में भेजेंगे, दूसरा पार्टी आपसे बात करता है. नाउ व्हाई इट इज डन? इट इज बेसिकली टू give the parties the chance to vent out their charged of feelings and emotions, because you know that in mediation the parties have many interests, many underlying interests जो शायद दूसरे पार्टी के सामने वो बात नहीं करना चाहेंगे. So in order to have that confidential issues of one party, you need to go for caucus. Now in this stage you need to gather as many information as you can, and
You also encourage the parties to invent settlement options, because mediation में आप क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट करने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे आप पार्टीज को एनकरेज करते हैं, बताते हैं कि आपका जो केस है वो किस तरीके से चल रहा है आगे, और व्हाट विल बी बेनिफिट, व्हाट विल बी इन योर बेनिफिट, एंड हाउ टू गो थ्रू दोज ऑप्शंस वेयर यू कैन फाइंड म्यूचुअल गेन्स। क्योंकि अगर आप पार्टीज को यहाँ पे एनकरेज करते हैं तो जो आपका मीडिएशन होगा वो प्रॉपरली फैसिलिटेटेड हो जाएगा। नाउ फाइनली, एज आई टोल्ड यू, देयर इज if there is a requirement of repeated joint and private sessions, तो आप ले सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि 2 बार करना चाहते हैं 2 बार करिए, 3 बार करना चाहते हैं 3 बार करिए। If you want to defer a mediation session for some other day, वो भी कर सकते हैं, because mediation is not a one day thing, वो काफी टाइम लगता है, उसमें दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं। So this is all about mediation. So you can have multiple number of joint and private sessions. Now इनका मेन मुद्दा क्या, मेन मकसद क्या होता है? The first is problem identification. आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज पार्टीज मे नॉट ऑलवेज बी शेयरिंग द अंडरलाइंग इंटरेस्ट। तो इसीलिए उन अंडरलाइंग इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको रिपीटेडली प्राइवेट एंड जॉइंट सेशंस करने पड़ते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दैट यू आर ट्राइंग टू इन्वेंट एंड जनरेट ऑप्शंस। एक बार आपने जनरेशन कर दिया ऑप्शंस का, उसके बाद उनको इवेलुएट भी करना है, बताना है कि क्या ये वर्केबल सॉल्यूशन है या नहीं है। उसको कैसे करेंगे? आप रियलिटी टेस्टिंग करेंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन देता है पार्टी, तो आप उनसे पूछिए कि क्या ये वर्केबल है, क्या ये फिजिबल है। सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड दिस हैज टू बी डन थ्रू लेटरल थिंकिंग। आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपने लास्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज किया था जहाँ पे देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 ब्रदर्स रिगार्डिंग द फ्लोर्स। तो हमने देखा था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, एक दोनों को ग्राउंड फ्लोर चाहिए था, बिकॉज वन वाज हैविंग स्मॉल किड्स एंड द अदर वाज लिविंग विद देयर मदर। तो उन्होंने क्या किया आखिर में? दे कंस्ट्रक्टेड अ लिफ्ट, दे कंस्ट्रक्टेड also they constructed a floor along with the lift। उससे क्या हुआ कि दोनों के सॉल्यूशन, दोनों के जो डिजायर्स थे वो सॉल्व हो गए। So they were able to reach to an amicable solution. So this is called lateral thinking, जहाँ पे आप out of the box सोचते हैं। So there has to be a creative, innovative and intuitive thinking that is lateral. That means intuitive का मतलब हुआ जैसे which is based on emotions, not on facts. Because we are not the court. हमें देखना है पार्टीज के इमोशंस को, पार्टीज के रिलेशनशिप को, कि वो मेंटेन रहे। So once it is done, we can select the options and the alternatives. अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? We need to first identify the prevailing issues. आप सेट करते हैं एजेंडास, क्या क्या एजेंडास हैं। उसके बाद आप घुसते हैं अंदर की तरफ, ठीक है भाई ये तो आपका इशू है, लेकिन ये क्यों है ऐसा इशू? what is the underlying issue? What is the underlying emotion behind this issue? Then you try to assist the parties in prioritizing issues and demands. The parties के तो काफी demands होती हैं. We all are humans. We can have numerous number of desires and demands. तो आप prioritize करवाते हैं कि कौन सी किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो ये कैसे होगा? आफ्टर, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर कंडक्टिंग a number of joint and private sessions, उसके बाद आप देखते हैं that what are the areas of agreement and what are the areas of disagreement. Now, as I told you, in a mediation, impasse is a default thing. Impasse or deadlock, ऐसी सिचुएशन आना जाहिर है जब आपको लगेगा कि जो आपकी प्रोसेस है, जो आपका प्रोग्रेस है उस मेडिटेशन प्रोसेस का, वो रुक गया है। दिस इज कॉल्ड इम्पास। So impasse occurs when the parties reach to a point where progress seems to stop. Now the reasons for this impasse are emotion. ये हो सकता है कि भाई जो इंसान है वो एक ईगो लेके बैठा है, एक वेंजेंस लेके बैठा है, एक रिवेंज लेके बैठा है। So this may be a reason that he do not want to mediate. Second is substantive reason, because the person do not know about the knowledge of law. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में उसे पता नहीं है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्या होता है, लॉ क्या है प्रॉपर्टी गवर्न जो प्रॉपर्टी को गवर्न करती है। सो देयर दिस मे बी अ रीजन फॉर इम्पास। थर्ड इज प्रोसीजरल इम्पास, जहाँ पे पार्टीज को पता नहीं है मीडिएशन क्या है and he's not trusting the mediator. So these are the reasons for impasse. So as a mediator, you need to also understand how to remove impasse, how to overcome
impasse. So it can be done. आप क्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि impasse आ चुका है, डेडलॉक आ चुका है, इसे खत्म करना है, यू कैन रीफ्रेम पोजीशंस. आप दोबारा से बोले कि हम दोबारा काम करते हैं, दोबारा से हम अपने आपके ऑप्शंस को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे. यू नीड टू फोकस ऑन इंटरेस्ट. यू नीड टू डू रियलिटी टेस्टिंग. आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपका फायदा है, अगर आपने इसको किया तो आपका ये नुकसान है. दिस इज कॉल्ड रियलिटी टेस्टिंग. आप उनको बोलिए कि क्या इसे वर्केबल सिचुएशन सॉल्यूशन है या नहीं है. एंड फॉर दिस यू नीड टू डू रियलिटी टेस्टिंग. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. आपको लगता है इम्पास आ चुका है, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो आप बोलिए कि ठीक है, हम दोबारा से शुरू करेंगे. यू कैन पोस्टपोन डिस्कशन. आप ये कर सकते हैं कि आज का सेशन जो है, आज हम यहीं पे रोकते हैं, हम कल दोबारा से मिलेंगे और दोबारा से सेशन को स्टार्ट करेंगे. बिकॉज नाउ दिस मीटिंग आफ्टर वन डे विल गिव देम एन एम्पल टाइम टू रीथिंक कि उनके लिए अच्छा क्या है, क्या उनके लिए बुरा है. सो इन दिस वे यू कैन ओवरकम द इम्पास. और क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक अ ब्रेक. सिंपली नथिंग मोर देन दैट. आप बोलिए चलिए ठीक है, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग. और सॉल्यूशन ढूंढिए, उससे पूछिए कि और क्या हो सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स टू ओवरकम इम्पास. नाउ एज अ मीडिएटर, इन व्हेन यू आर डीलिंग विद एन इम्पास, आपको क्या करना है, यू हैव टू बी पेशेंट. अगर आपका पेशेंस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, it is difficult for a mediator to overcome an impasse. He has to be optimistic. आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा. There has to be detachment from the problem. आप उसको प्रॉब्लम को अपना नहीं बनाएंगे. You are just a mediator. You are there as a facilitator. Perseverance. This is the most crucial element in a mediation. आप ट्राई करते रहेंगे. Flexibility. So if one option is not working, move to some other option. And finally, sense of humor, because we are humans and we do like sense of humor. Now, generation and evaluation of options. अब आपको मैंने देखा, आपको मैंने बताया कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, लेटरल थिंकिंग कर लिया, आपने ऑप्शंस ढूंढ लिए. तो अब ऑप्शंस क्या क्या आपके काम के हैं, उन सब पे आपको काम करना है. That yes, this is my one option. अगर for example there is a dispute regarding एन एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपको नई सैलरी दी जाएगी, आपको सैलरी बढ़ा के दी जाएगी, आपकी पोस्ट चेंज कर दी जाएगी, आपको प्रमोशन दिया जाएगा. तो दीज आर मेनी ऑप्शंस. सो यू नीड टू जनरेट ऑप्शंस पहला. उसके बाद आपको इवेलुएट भी करना है कि क्या ये ऑप्शन ठीक है, क्या ये ऑप्शन आपको फायदा देगा, क्या ये ऑप्शन म्यूचुअल फायदा देगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हेन व्हिच वी डू एज अ जनरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शंस. Now, selection of options and alternatives. अब options जो आपने ढूंढ लिए हैं, उन पे आपको काम करना है. You need to evaluate those options. This is called finding alternatives. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको प्रमोशन मिलेगा. This is an option. अब वो ऑल्टरनेटिव में कब तब्दील होगा कि क्या वो ऑप्शन कंड्यूसिव है, क्या वर्केबल है, क्या फिजिबल है. अगर ये चीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन ऑल्टरनेटिव. तो आपको देखना है कि वर्केबिलिटी क्या है उस ऑप्शन की, प्रोग्रेस क्या उससे होगी पार्टीज के बीच में. सो फॉर दिस यू नीड टू encourage parties to select the options which appear workable for both. तो एक के लिए वर्केबल है, दूसरे के लिए फिजिबल नहीं है, will not work. So it has to be workable for both the parties, and then they need to have a plan of course of action. They need to plan a course of action. उसके बाद वो देखेंगे कैसे काम करना है. It's not only we are not done here that only after finding the alternatives हमारा जो mediation है खत्म हो गया. We need to also find out कि वो कैसे काम करेगा. What will be the process? And finally, we head towards stage 5, that is called settlement and closure. अब यहाँ पे या तो settlement होगा parties के बीच में after finding out the options, finding out the alternatives. अब वो चाहते हैं कि एक settlement लिखा जाए. उनका जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व होने वाला है, तो उसके लिए वो चाहेंगे कि एक सेटलमेंट लिखा जाए. उसके टर्म्स कौन डिसाइड करेगा, पार्टी डिसाइड करेंगे. सो इफ देयर इज अ सेटलमेंट, यू नीड टू राइट अ सेटलमेंट अग्रीमेंट which will include the terms which are favorable, acceptable by both the parties. एक बार आपने लिख लिया है, आपको सुनाना भी पड़ेगा कि भाई ये टर्म्स हमने लिखे हैं,
तो क्या आप इसको एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? दिस इज व्हेन सेटलमेंट इज देयर। सेकंड इज नो सेटलमेंट। अगर इतनी मेहनत करने के बाद, डिफरेंट सेशंस लेने के बाद, डिफरेंट जॉइंट सेशंस लेने के बाद, डिफरेंट कॉकस लेने के बाद, इफ देयर हैज बीन नो सेटलमेंट, तो आप सिंपली लिखते हैं that the mediation has failed, nothing more than that. If it is a court referred mediation, you will simply write to the court that the matter is being referred back to the court as mediation efforts are failed. रीजन क्या था mediation फेल होने का आप नहीं लिखेंगे, because as we say, it is a confidential process. So confidentiality has to be maintained at every stage of mediation. So whether it is the introduction or the final stage of settlement. And finally the closure. Closure में आप कुछ नहीं करते हैं, आप दोनों parties को बोलते हैं कि ठीक है, it was a good day where we have negotiated and we have find an amicable solution to your problem. So if we see settlement, settlement में क्या क्या होना चाहिए? Terms of agreement होने चाहिए. You need to also see whether there is a viability with each party of those terms. Ask party is there any other issue. Ask party in specifying the terms of resolution. So for example, if the employer and employee have decided to have an increase in salary, तो आपको सब कुछ पूछना है, कहाँ पे करेंगे, सैलरी कब इंक्रीज होगा, कितना होगा, जो सैलरी इंक्रीज होगा वो कब से मिलेगा, कौन देगा, सब कुछ, so that the possibility of reoccurring of the dispute is minimized or is extinguished. So you need to understand that it's not only about having a mediation session, but also to have a settlement agreement, which is workable, feasible, acceptable to both the parties. And after it is done, just congratulate both the parties, nothing more than that. And if there's no settlement, as I told you, again, you have to respect their decision. Summarize the points of agreement. ये भी हुआ होगा mediation में, अगर उनका settlement नहीं हुआ, at least उनमें कुछ development हुआ है, तो उसकी कदर करनी है. Discuss the brief consequences of going back to litigation. ये भी बताइए उनको कि litigation में जाने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं. And compliment parties for their participation and wish them luck. Now, the benefits of mediation. It is self-determination. जो parties का outcome होता है, parties खुद से decide करती हैं. जो mediator है, वो सिर्फ और सिर्फ process को control करता है. It is an effective communication. जो communication टूट चुका था parties के बीच में, उसको लाने की कोशिश की जाती है. It is confidential. Nothing goes out of the mediation session. Voluntariness. Parties are voluntarily coming to the mediation. They are voluntarily free to go out of any mediation session. It's a simple procedure. It saves time, energy, cost, सब बचता है. We talk about long-term interest. हम देखते नहीं हैं mediation में कि सिर्फ और सिर्फ अभी का मुद्दा solve हो गया है. We need to see about the relationship between the parties which may go forever. Mutual benefits की बात करते हैं. It helps in mending broken relationship. We create multiple options जो litigation में नहीं होते हैं. Because in litigation there is a code. एक act है जो आपको बताएगा कि ये सही है, ये गलत है. But in mediation, you see yourself as the problem solver. आप ही अपने outcomes को decide करते हैं. So the main idea of mediation is to increase the pie. अगर आपके पास कम resources हैं, तो उसमें आप कैसे उसकी जो workability है, उसे बढ़ा सकते हैं. It is a written agreement where both the parties have agreed to the settlement. So finally, I would like to conclude. So as you all know, parties are no one but human beings. So mediation दो parties के बीच में होता है. That means दो human beings के बीच में होता है. It is not between two doctors, or it is not between an advocate or client. It is not between a student and teacher. It is between two human beings. Whether they are student, whether they are teachers, whether they are doctors, whether they are engineers, it hardly matters. What matters is they are human beings. So if the mediation process is well structured, it leads to successful mediation. Impasse cannot be separated from the process of mediation. As I told you, mediation comes with the impasse. Even the starting of mediation is impasse. Impasse हुआ है, इसीलिए तो mediation करने आए. So impasse do happen. So you must know how to overcome this impasse. For this, you need to conduct brainstorming until the workable solutions are achieved. And finally, when you're writing a settlement,
the terms of settlement shall be crystal clear. And finally, at the end of the day, you need to respect the party's decision, whether they have agreed to settlement, whether they have not agreed to settlement. In both the cases, the party's decision has to be respected. So with this, I conclude today's lecture. Thank you.